Hello students, welcome to my channel, Arun's Physics Portal. In this lecture, I will discuss about the basics of a microprocessor. What is a microprocessor? What is a microprocessor unit? What is an embedded system? What are the input and output devices? What is a microcontroller? And all that is necessary for the further study of a microprocessor. This topic is meant for MSc Physics and Electronics students and also for BE and BTech students of EEE and ECE branches. The GRF and NET aspirants will also find this topic useful. The complete note of the topic is given here for your convenience. I hope you enjoy going through it. Now let us come to the topic. A microprocessor is a semiconductor chip fabricated by using very large scale integration technology. जो पीसी आप घर में यूज करते हैं, जो लैपटॉप यूज करते हैं, that is actually your microcomputer, which is capable of performing arithmetic and logical operations and communicating with the other devices connected to it. माइक्रोप्रोसेसर जो है इस माइक्रो कंप्यूटर का कंट्रोलिंग यूनिट है. दिस इज मेन पार्ट ऑफ योर होम पीसी. इट इनकॉर्पोरेट्स द फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम सीपीयू बोलते हैं. इट इज ए मल्टीपर्पस. मल्टीपर्पस का मतलब it can perform a number of tasks. It is programmable. That means you can program it and you can instruct what it has to do. It is a clock driven. मतलब इसका एक्शन जो है, इसका ऑपरेशन जो है, सो क्लॉक से कंट्रोल होता है. What is a clock? Clock is nothing but a series of rectangular pulses. It is register based electronic device. What is a register? Register is a memory element, and a flip-flop is used to store 1-bit data. So register is a group of flip-flops. So this device reads binary instruction from a storage device, which we call memory, accepts the data in binary form as input, and processes this data according to the instructions given and provides the result as output. ये डेटा को एक्सेप्ट करता है बाइनरी फॉर्म में. बाइनरी फॉर्म का मतलब हुआ इन टर्म्स ऑफ ओनली 0 एंड 1. कहाँ से एक्सेप्ट करता है? मेमोरी से. आप उसको इनपुट डाटा देते हैं, चाहे वो कीबोर्ड से दें, स्कैनर से दें, ठीक है. जैसे भी डेटा दीजिए उसको आप, उसको एक्सेप्ट करता है, डेटा को प्रोसेस करता है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन यू प्रोवाइड एंड गिव्स यू द रिजल्ट. इट इज एन एग्जांपल ऑफ सीक्वेंशियल डिजिटल लॉजिक. आपने पढ़ा होगा कि लॉजिक दो तरह का है. एक है कॉम्बिनेशनल लॉजिक और एक होता है सीक्वेंशियल लॉजिक. सो व्हाट इज कॉम्बिनेशनल लॉजिक? कॉम्बिनेशनल लॉजिक में कोई मेमोरी एलिमेंट नहीं है एंड द आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द इनपुट प्रेजेंट एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम. जैसे आपका हाफ एडर है, फुल एडर है, उसमें आप जो इनपुट देंगे उसी के बेसिस पर आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है. लेकिन जो सीक्वेंशियल डिजिटल लॉजिक सिस्टम है, इसमें मेमोरी एलिमेंट है और इसका आउटपुट सिर्फ उस समय के इनपुट पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि उसके पहले भी जो इनपुट रहा होगा उस पर भी डिपेंड करता है. So it has a memory element. Microprocessors operate on numbers and symbols represented in the binary number system. ये सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम पर ही वर्क करता है. The general purpose microprocessors in personal computers are used for computation, text editing, multimedia display, and communication over the internet. Many more microprocessors are part of embedded systems. So एक नया वर्ड आया है, embedded system. What is embedded system? ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें माइक्रोप्रोसेसर का यूज हुआ है
but this is not the end product and we cannot reprogram it. ठीक है? Microprocessor forms a part of that electronic device, but is not available to the user for reprogramming it. जैसे आपका जेरोक्स मशीन है, वॉशिंग मशीन है, एसी है, गीजर है, कार का डैशबोर्ड है, म्यूजिक सिस्टम है, सब में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल है और इसकी प्रोग्रामिंग उसी समय कर दी गई जब इसको मैन्युफैक्चर किया गया है। जैसे आपने देखा होगा माइक्रो प्रोसेसर के एक यूज में, जो यूज हम करते हैं वॉशिंग मशीन में, तो आपने देखा होगा वॉश टाइम जो है, वॉश टाइम वो है 6 मिनट, 12 मिनट्स, 18 मिनट्स, 24 मिनट्स एंड सो ऑन। तो प्रोग्रामिंग पहले सीखी हुई है कि ये वॉश कर सकता है 6 मिनट तक, 12 मिनट तक, 18 मिनट तक एंड सो ऑन। यदि आप चाहते हैं कि हम उसके प्रोग्रामिंग को बदल के वॉच टाइम कर दें 15 मिनट का या 12 मिनट का, तो ये 12 मिनट पहले से है ही, हम 10 मिनट कर दें वॉच टाइम उसका, 15 मिनट्स कर दें, 20 मिनट्स कर दें, तो ये संभव नहीं है क्योंकि इसकी प्रोग्रामिंग पहले से हो चुकी है और आपके लिए अवेलेबल नहीं है कि आप उसको दोबारा रीप्रोग्राम करें। तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं एम्बेडेड सिस्टम्स। ठीक है? The main functions of a microprocessor include, तीन मेन फंक्शन क्या है उसके? कंट्रोलिंग ऑन फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा है कैलकुलेटिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूजिंग लॉगरिथम्स एंड enabling easy transfer of data from one location to another. Almost all electronic equipments are equipped with some kind of microprocessor. It houses the central processing unit, commonly referred to as the CPU, and as such is crucially important part of the home PC. ये मेन पार्ट है उस पीसी का जो आप घर में यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं होम पीसी, या आपका लैपटॉप है, डेस्कटॉप है। माइक्रोप्रोसेसर को हम कभी कभी बोलते हैं दिस इज दी, वी कंपेयर इट विद द ब्रेन ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर, एंड दिस इज responsible for the processing of the instructions which make up the computer software. माइक्रोप्रोसेसर जो है उसमें डाटा फीड करते हैं थ्रू इनपुट डिवाइस। डाटा कैसे फीड करते हैं? व्हाट आर द डिवाइसेस? दे आर कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, microphone, etc. Similarly, information or data is fed to our brain, which is the equivalent of microprocessor, to our five sense organs. The brain gets inputs from our eyes, ears, nose, etc., and sends the processed information to the output device, such as the face, hands, feet, or the eyes to act accordingly. आंख देख रहा है, वहां आग लगी हुई है। So this information is the input. It is sent to the brain. ब्रेन इंस्ट्रक्ट करता है पैरों को कि यहाँ से भाग भाग जाओ, जो आग लगी हुई है, दुर्घटना हो सकती है, so it is better for you to run away from this. So we can compare a microprocessor with a human brain. लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर भी है। Whereas the microprocessor is so simple, the brain is a complex. It's very, very complex. Now let us see what is a programmable device. A programmable device is an electronic component used to build reconfigurable digital circuits. Unlike integrated circuits, which consist of logic gates and a fixed function, a programmable device has an undefined function at the time of manufacture. जैसे आपके लॉजिक गेट्स हैं, एंड गेट है, और गेट है, नैंड गेट है, नॉट गेट है, एक्सऑर गेट है, एक्सनॉर गेट है, इनका फंक्शन डिफाइंड है। जब मैन्युफैक्चर हुआ उसका फंक्शन डिफाइन हो गया और उससे अलग वो कुछ नहीं कर सकता है। इसके विपरीत जो प्रोग्रामेबल डिवाइस हैं, उसको आप उससे आप जो चाहें सो काम ले सकते हैं। आपको उसकी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, उसको आपको इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, इस समय तुम ये काम करो, इस ऑर्डर में काम करो, ये सब आपको उसको बताना है।
सो यू हैव टू इंस्ट्रक्ट इट और यू हैव टू प्रोग्राम इट। इसकी प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं। फिगर 1 में हम दिखा रहे हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए टिपिकल प्रोग्रामेबल मशीन। यहाँ देखिए, एक है माइक्रो प्रोसेसर, साथ अटैच है इनपुट है, आउटपुट है, मेमोरी है। सो इट हैज 4 कंपोनेंट्स: माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट। ये चारों कंपोनेंट मिलके काम करते हैं एक साथ टू परफॉर्म ए गिवन टास्क। दे जस्ट comprise a system। अब डिफाइन करें व्हाट इज a system? A system is a set of things that work together as parts of a mechanism or an interconnecting network। जो फिजिकल कंपोनेंट हैं सिस्टम के, उसको हम बोलते हैं हार्डवेयर। And a set of instructions written for the microprocessor to perform a task is called a program, and a group of programs is called software। ठीक है, कई टर्म्स में आए हैं नए नए। एक है सिस्टम, वो पार्ट जो फिजिकल है, जिसको आप छू सकते हैं, जिसको अनुभव कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं हार्डवेयर। इसको इंस्ट्रक्शन जो देते हैं किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं प्रोग्राम। एंड सेट ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड ए सॉफ्टवेयर। ओके, जस्ट एज ए पर्सन हु डिजाइंस ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई आदमी जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बनाता है, डिजाइन करता है, जैसे हारमोनियम है, उसमें कई की होते हैं, उसके कीबोर्ड पर किसी की फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, वो उसका मैन्युफैक्चरर ही बता सकता है। वो डिजाइन करता है, हर की फ्रिक्वेंसी अलग अलग डिसाइड करता है। उसी तरह जो इंजीनियर माइक्रो प्रोसेसर बनाता है, वो सर्टेन सेट ऑफ टास्क के लिए बनाता है उसको, ये माइक्रो प्रोसेसर क्या क्या काम कर सकता है और उसको कैसे इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, ये वही तय करता है। ठीक है, सो ही देन प्रोवाइड्स द यूजर विथ a set of instruction that the design microprocessor will understand। ये इंस्ट्रक्शन जो हैं सो 0 और 1 के फॉर्म में ही होते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने वाला व्यक्ति कीबोर्ड में जितने कीज हैं, सबसे निकलने वाले फ्रीक्वेंसीज को डिसाइड वही कर सकता है, उसी प्रकार जो इंजीनियर माइक्रो प्रोसेसर डिजाइन करता है, वो क्या काम कर सकता है वो माइक्रो प्रोसेसर, और किस तरीके से इंस्ट्रक्शन देना होगा, ये वही डिसाइड करता है। ये इंस्ट्रक्शन जो हैं सो 0 और 1 के फॉर्म में होते हैं, क्योंकि माइक्रोप्रोसेसर सिर्फ 0 और 1 की भाषा ही समझता है। एग्जाम्पल के लिए, यदि इंस्ट्रक्शन हम देते हैं माइक्रोप्रोसेसर को कि बी को ऐड करो, बी को ऐड करने का मतलब ये है, बी इज नॉट ए नंबर, बी इज ए रजिस्टर। रजिस्टर मतलब मेमोरी एलिमेंट है। ऐड बी का मतलब हुआ कहने का कि बी जो रजिस्टर है, उसका जो कंटेंट है उसको ऐड करो। कहाँ ऐड करना है? जो एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, या जितना भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा, लॉजिकल ऑपरेशन होगा, ये होता है एक दूसरे रजिस्टर में, जिसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटर। उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल ए से। ठीक है, कैपिटल ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्यूमुलेटर को। तो जितने मैथमेटिकल ऑपरेशन होंगे या जितने लॉजिकल ऑपरेशन होंगे, वो एक्यूमुलेटर में ही होते हैं। तो जब हम कहते हैं कि बी को ऐड करो, इसका मतलब बी में, बी रजिस्टर में जो भी डेटा है उसको ऐड करो। कहाँ ऐड करना है? एक्यूमुलेटर में पहले से जो डेटा है उसमें इसको ऐड करना है। ठीक है, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? दिस रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट्स एज 10000000। और जब कहा जाएगा कि बी को सब्ट्रैक्ट कीजिए, इसका मतलब बी रजिस्टर में जो डेटा अवेलेबल है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। किससे? एक्यूमुलेटर में जो डेटा अवेलेबल है उससे बी रजिस्टर के कंटेंट को सब्ट्रैक्ट करना है। और इसके लिए क्या इंस्ट्रक्शन दिया जाता है? इन द बाइनरी फॉर्म 10010000। द यूजर कैन सेलेक्ट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द लिस्ट एंड डिटरमिन द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन फॉर ए गिवन टास्क। किस ऑर्डर में काम करना है, ये लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन से यूजर
डिसाइड कर सकता है। These instructions are stored in the memory of the microprocessor and can be read by it. जितने इंस्ट्रक्शन है वो कंप्यूटर के मेमोरी में स्टोर हैं और उसको पढ़ा जा सकता है। भाई, what is the memory? The memory of a microprocessor is composed of 8-bit registers which are arranged in sequence. 8 बिट का रजिस्टर है। 8 बिट मतलब, एक बिट का मतलब हुआ आइदर 0 और 1। 1 बिट का मतलब हुआ उसमें 8 बिट्स होंगे, मतलब इस तरीके से हो सकता है वो 0 0 0 0, ये हुआ 4, 1 2 3 4। यहां से लेके ये वैरी करते करते जा सकता है कहाँ तक, 1 1 1 1 1 1 1 1, यहाँ तक जा सकता है। तो ये हुआ 8 बिट रजिस्टर। ये कितनी इसमें डिजिट्स हैं, 8। तो दिस इज योर 8 बिट रजिस्टर। ओके, which are arranged in sequence. The registers are invariably grouped together in powers of 2. A group of 1024, that means equal to 2 to the power 10, 8-bit registers on a chip gives 1 kilobyte of memory. एक बाइट का मतलब हुआ 8 बिट। 1 बाइट इज 1 बिट। 1 बिट का मतलब एक 0 हो या एक 1 हो। ठीक है, तो इन मैथमेटिक्स 1 किलो मीन्स 1000, whereas in computer we use 1 kilo equal to 1024। याद रखिएगा। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस क्या है? तो a programmer may enter the data and instruction into the computer memory through keyboard, mouse, scanner, joystick, light pen, digitizer, microphone, keyboard, etc., which we call input devices। जिससे हम डेटा फीड करते हैं माइक्रोप्रोसेसर को, उसको हम बोलते हैं इनपुट डिवाइस। ये क्या हो सकता है? ये कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है, स्कैनर हो सकता है, जॉयस्टिक हो सकता है, लाइट पेन हो सकता है, डिजिटाइजर हो सकता है, माइक्रोफोन हो सकता है, वगैरह वगैरह। इसको हम बोलते हैं इनपुट डिवाइस। द माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेसेस द डेटा। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर जो है डेटा को प्रोसेस करता है, और कैसे प्रोसेस करता है? अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन, डिस्प्ले द रिजल्ट ऑन मॉनिटर्स एंड प्रोजेक्टर्स, हेडफोन्स एंड स्पीकर्स और प्रिंटर्स, विच वी कॉल आउटपुट डिवाइस। इनपुट कहाँ से लेगा, उसको हम बोलते हैं इनपुट डिवाइस। और आउटपुट कहाँ पर दिखाएगा, कहाँ पर भेजेगा आउटपुट को, उसको हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। अब देखिए तीन चार चीजें हैं, वो क्या क्या है। एक है माइक्रो प्रोसेसर, एक है माइक्रो प्रोसेसर यूनिट, एक है माइक्रो कंप्यूटर, और एक है माइक्रो कंट्रोलर। ये चार चीजें हैं, इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। सो क्या अंतर है ये हम देखते हैं। देखिए, with the advent of integrated circuit technology, the central processing unit now built on a single chip and is known as microprocessor. So what is a microprocessor? Microprocessor is the central processing unit of a computer built on a single chip. The microprocessor is thus nothing more than the central processing unit on a single chip. तो माइक्रोप्रोसेसर का जो चिप है उसमें नंबर ऑफ पिन्स इज लिमिटेड। ठीक है ना? तो एक कंप्यूटर विद माइक्रोप्रोसेसर एट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसको हम बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। और जो आपका पीसी है वही हुआ आपका माइक्रो कंप्यूटर। The microprocessor and the microprocessor unit are often used synonymously. माइक्रोप्रोसेसर में जो पिन है उसकी संख्या लिमिटेड है, लेकिन उसको ऑपरेट करने के लिए नीड ए नंबर ऑफ सिग्नल्स। तो सिग्नल को हम प्रोड्यूस करते हैं बाय यूजिंग डिस्क्रीट डिवाइसेस। तो माइक्रोप्रोसेसर हुआ, और ये जो हमारा सिग्नल है सबको एक साथ मिला दें तो वो हो गया हमारा माइक्रोप्रोसेसर यूनिट।
Okay. With the advent of semiconductor fabrication technology, it has now been possible to place microprocessor unit, memory, and input-output interfacing unit on a single chip. माइक्रोप्रोसेसर हुआ, सिग्नल हुआ, मेमोरी हुआ, इनपुट आउटपुट डिवाइस हुआ, ये सारे को एक सिंगल चिप पे बनाना संभव हो सका है बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट इन वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी, एंड दिस इज नाउ नोन एज माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो कंट्रोलर यूनिट। ठीक है, मैंने सारा सिस्टम जो है कंप्यूटर का एक ही चिप पर आ जाए तो वो हो गया हमारा माइक्रो कंट्रोलर। So a microcontroller is thus a compact integrated circuit designed to govern a specific operation in an embedded system. It essentially consists of a microprocessor, input and output interfacing circuits, analog to digital converter, timer, and memory on a single chip as shown in figure 2. देखिए फिगर 2 में दिखा रहे हैं आपको हम ये क्या है, माइक्रो कंट्रोलर है, मेमोरी है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, पेरिफेरल डिवाइसेस हैं जो इसके साथ कनेक्टेड हैं, एडी कन्वर्टर है, टाइमर है, सीरियल इनपुट आउटपुट। In other words, a microcontroller is a complete computer on a single chip. So this is all about the basics of a microprocessor. So we have seen what is a microprocessor, what is an embedded system, what are input and output devices, what is memory, what is a microcontroller, what is a microprocessor unit, and all that is necessary for further understanding of the microprocessor architecture. So I hope you enjoy this lecture. यदि आपको मेरा यह लेक्चर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। So thank you for watching. See you next time with some other topic of interest. Till then, goodbye.